again. We start with the Bresson DDA line algorithms. We start with the DDA. We finish kiya tha. Let me just go quickly to the solution. So we discussed this point. ये थोड़ी सी इसकी roughly theory है. हमने already discuss कर ली. So let me just skip. Don't worry about these figures and mathematics. These are just for the reference sake, just to make understanding how it goes. Okay. I won't be asking these things in the exam as well. So just keep in mind the actual purpose. That Bresson-Hams is an integer. Basically, it's better than DDA. Main point. Second, it uses integer calculation. Second point. Third, it is an incremental model as well. ठीक है, ये तीन इसके main चीजें. Just keep that in mind. That it is a incremental scan conversion model. ये भी हमें screen conversion को ही solve करने में provide करता है. Only thing is that it is little bit different from DDA, and it tries to solve the problem much more faster, much more easily. ठीक है, तीन चीजें इसकी थोड़ा सा दिमाग में बैठाने वाली हैं. यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, ये अभी हम सारा डिस्कस करके बैठे हैं. अब आ जाते हैं इसके सॉल्विंग के ऊपर कि हाउ डू वी सॉल्व द Bresson-Hams प्रॉब्लम. Now, let at any moment pixel I be xi and yi. We say that, for example, I have to draw a line from this point onwards. Okay? From this point onwards, I have to draw the line. Now, what I'm supposed to do? That from this point forward, I have to draw the line. So the first point I denote it with I. जो पहला point है, उसको हमने I से denote किया, और उसकी x and y value को हमने xi, yi कह दिया. This becomes my first point. ठीक है, सिंपल. पहला पॉइंट I हमने डिनोट किया. दिस बिकम्स माय xi and yi, फर्स्ट पॉइंट. फिर हमने कहा that the since initial pixels and the next pixel would be xi plus yi, because this is an incremental model, hence the next pixel, वो obviously अगर पहला pixel xi है तो मैं कहूँगा what should the next pixel be? In an incremental model, based on the incremental approach, we say just do the simple increment. तो xi में +1 किया, अगला पिक्सल की वैल्यू आ गई. yi में प्लस किया तो yi में अगली वैल्यू आ गई. yi या xi का मतलब the current pixel I have. तो जो current pixel आपके पास है उसमें +1 करो, next pixel आ गया. अब वो जो next pixel है वो xi, फिर उसमें +1 करो, now you get the next pixel. ठीक है, सिंपल है लॉजिक. इसी को हम इंक्रीमेंटल मॉडल कहते हैं. That we start from a certain given point. We start from a certain given point. हम कोई शुरुआत में हमें जरूरी है कि कोई एक मखसूस नंबर गिवन हो. Once we have that number, then we simply do the increment and proceed. Problem in Bresson-Hams is that when we do the increment, we have two options, P and Q. When I draw the line, I did the increment and I get to this point. Now this point is denoted in the here as R. R is what we say real pixel, जो actual pixel आया मेरे पास. मसला ये कि जब हमने इंक्रीमेंट किया तो हम एक्चुअल में दो पिक्सेल्स के दरमियान में आ गए. Somehow हमारे incremental calculation become in such a way that now I reside between two pixels. अब दो पिक्सेल्स आ गए. हमारा टास्क ये है कि ये चूज करना है कि मैं कौन सी पिक्सल की तरफ जाऊं. दो रास्ते आ गए. अब हमें ये सोचना है कि मैं कौन सा रास्ता चूज करूं. सिंपल एज दैट. Whether I should choose P, whether I should choose Q. इस पिक्सल को हमने P कह दिया, इस पिक्सल को हमने Q कह दिया. इन पहला पिक्सल I, P and Q, दो पिक्सल. अब सारी जंग, सारा फैसला, सारी कैलकुलेशन इसी चीज को मद्देनजर रख के की है हमने. That when we draw the line, my line by default is possible, not necessary. Not necessary. हमेशा ऐसा नहीं हो सकता, या ऐसा जरूरी नहीं कि हर दफे ही हमारी लाइन दो पिक्सेल्स के दरमियान में आए. हो सकता है कि आई हैव ड्रॉन द लाइन परफेक्टली वर्टिकली, डायगोनली. परफेक्ट वर्टिकल बनाऊं, हॉरिजॉन्टल बनाऊं या डायगोनल बनाऊं, तो इट विल ऑलवेज बी इन सेंटर पॉइंट. हेंस आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आई ड्रॉ द लाइन कंप्लीटली डायगोनली. जब मैं डायगोनली बना रहा हूं तो डायगोनली का मतलब ये गोज इन एग्जैक्ट दिस पैटर्न. हेंस माय लाइन वुड ऑलवेज बी एट अ परफेक्ट पिक्सल पॉइंट. But in certain cases, it is possible that the slope of my line deviates from a perfect angle. ठीक है, वो
थोड़ा सा डिविएट हो जाए, इंस्टेड ऑफ 45 इट इज 40 डिग्रीज। नाउ इफ इट इज इन 40 डिग्रीज तो थोड़ा सा लाइन हमारी नीचे आ गई, इंस्टेड ऑफ गोइंग अप हियर। अब जब नीचे आ गई तो व्हाट पिक्सल शुड आई चूज, दिस वन और दिस वन? ये डिसीजन फैक्टर हम कैसे लें? तो ये सारी बात ब्रेसेनहेम्स की इस चीज के ऊपर हो रही है, that which pixel should I choose. So we say since each pixels are unit distance from each other, this thing again we have discussed previously multiple times. ये स्क्रीन हो गई, हर पिक्सल हमारे पास एक मखसूस फासले के ऊपर बना हुआ होता है in every screens that we have available. पिक्सल क्या है? पिक्चर एलिमेंट। We know that every display unit consists of pixels. वो पिक्सल्स रो एंड कॉलम फॉर्म में अरेंज होते हैं, ये भी हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और वो जब रो एंड कॉलम होते हैं तो एक मखसूस तरतीब के साथ एक मखसूस यूनिफाइड पैटर्न के ऊपर होते हैं। तो क्योंकि वो एक खास तरतीब में यूनिफाइड पैटर्न में है तो एल्गोरिथम कहता है कि लेट्स अज्यूम वन थिंग, लेट्स टेक दिस xi plus 1 and make it equal to xi plus 1. It says because each pixel is in a unified distance available from its original point. हर पिक्सल अपने दूसरे पिक्सल से एक मखसूस फासले पे मौजूद है और वो फासला हमेशा कांस्टेंट है, और हम इंक्रीमेंटल मॉडल यूज कर रहे हैं, मतलब मुझे हर दफा एक एक करके इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। अब उसने कहा कि यार ऐसा करो, थोड़ा सा एल्गोरिथम को सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं, मैथमेटिक्स वाली सोच रखो, ठीक है। Now according to the mathematical thought, we said that if I write xi plus 1, I can write this xi plus 1 equals to xi plus 1 as a normal. अब इसको सबस्क्रिप्ट में से हटा के हमने नॉर्मल प्लस 1 कर दिया। फर्क क्या हुआ और क्यों किया? What is the difference? सबसे पहले हमने कहा कि xi is the current pixel, okay? xi is the current pixel, hence if I write xi plus 1, this means current pixel plus 1. Next pixel, xi is the current pixel plus 1 किया, next pixel आ गया, ठीक। Then I said instead of writing xi plus 1 like this, I should write xi, अलग करो और उसमें plus 1, मतलब वही xi करंट पिक्सल, इस करंट पिक्सल की जो वैल्यू है उस वैल्यू में मैं प्लस 1 कर दूं। करंट पिक्सल की जो वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे i इंडेक्स को डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे i इंडेक्स को डिफाइन कर रहा है, वैल्यू को नहीं, ठीक है। इंडेक्स नंबर हमें पता है क्या होता है, वी यूज इट इन एरेज, ठीक है, वी यूज इट इन एरेज, कि एरे के इंडेक्स पे कोई भी डेटा पड़ा है, डेटा कौन सा है वो हमें नहीं पता, व्हेन हम इसकी जब इंडेक्स रेफर कर रहे हैं तो इंडेक्स रेफर हो रहा है, तो यहाँ पे हम उस xi इन टर्म्स ऑफ उस पिक्सल की इंडेक्स को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि यार उस इंडेक्स को प्लस नहीं करो, उस इंडेक्स को मैं प्लस करूंगा तो नेचुरली मुझे अगला पिक्सल मिलेगा, तो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हेंस थोड़ा सा लॉजिकली उसने कहा कि टेक द करंट पिक्सल वैल्यू नॉट द करंट पिक्सल इंडेक्स, टेक द करंट पिक्सल वैल्यू एंड डू द प्लस 1 इन दैट। करंट पिक्सल वैल्यू उसमें प्लस 1 कर दो, आपका अगली वैल्यू है। बज़ाहिर हमने कोई फर्क नहीं किया, बज़ाहिर there is no difference, it basically same thing, but it just resolves something in terms of mathematically, that now instead of altering the index value, we are altering the value, not the index. इंडेक्स कोई भी हो, जो भी xi की वैल्यू होगी उस करंट वैल्यू को आपने प्लस 1 करना है। बात समझ आई? इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस। इन अदर वर्ड्स यूं कह लो कि कान को हमने यूं नहीं थोड़ा सा यूं करके पकड़ लिया, बात सेम ही की हमने, किया हमने इंक्रीमेंट ही है, पर अब थोड़ा सा टेक्निकली हमने इस बात को घुमा के कहा कि इंस्टेड ऑफ उसकी इंडेक्स की को प्लस करने से, अब अगेन मैं जब इंडेक्स को प्लस करूंगा तो इंडेक्स नंबर है 1, मैंने कहा इंडेक्स को प्लस करो 1 तो इंडेक्स नंबर हो गया 2, तो ये इंडेक्स 2 हुआ। अब इंडेक्स 2 पे वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है, हमें नहीं पता, हमने वैल्यू को नहीं पता किया, हमने उसकी इंडेक्स को चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल जब हम लूप्स यूज करते हैं एरेज के अंदर, तो जब हम फॉर लिखते हैं, फॉर x इज इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू array डॉट लेंथ एंड देन वी से x प्लस प्लस,
and then we say array dot sorry not dot this x, this is array a डबल आर, और उसकी हमने इंडेक्स को एक्सेस किया, मुझे नहीं पता वैल्यू क्या है, मैंने उसकी इंडेक्स को उधार के अब जो पहली इंडेक्स 1 है उस पे जो भी वैल्यू हो वो फॉर एग्जांपल यहाँ प्रिंट करवा दो, system.out.print, so whatever the value is at this index उसको प्रिंट करो। इसको मैं इस तरीके से भी कह सकता हूँ कि यार जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू में +1 करो। नाउ मीन्स कि जो भी इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स को हम 1 by 1 लेके जा रहे हैं, पर इंडेक्स की जो वैल्यू आ रही है, अब वो वैल्यू जो है हो सकता है कि x के जो एरे हमारे पास, ठीक है, उस एरे के अंदर जो एलिमेंट है वो 5, 10, 15, 20 कर तो अब जब हम +1 u लिख रहे हैं इसका मतलब ये कि इस वैल्यू को उठाओ, ठीक है। अगर हम +1 u लिख रहे हैं सबस्क्रिप्ट में तो मैं इंडेक्स को ट्रैवर्स कर रहा हूँ, मीन्स I is equal to 0, I is equal to 1, I is equal to 2, I is equal to 3, ये इंडेक्स 0, ये इंडेक्स 1, ये इंडेक्स 2, ये इंडेक्स 3। जब हम I +1 कर रहे हैं आई एम ट्रैवर्सिंग द इंडेक्स, जब हम I xi and +1 कर रहे हैं नाउ आई एम ट्रैवर्सिंग द वैल्यूज। थोड़ा सा इसका टेक्निकल फर्क ये है, यहाँ पे क्योंकि हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं कि xi पे जो भी वैल्यू है उसको +1 करो, xi की जो भी वैल्यू है उसमें +1 करो, xi की जो भी वैल्यू है उसमें +1 करो, तो ये टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, बट वी गेट द आंसर इज सेम, बट थोड़ा सा मैथमेटिकली टेक्निकली देयर इज अ डिफरेंस। सो इंस्टेड ऑफ एडिटिंग द इंडेक्स फैक्टर नाउ वी आर एडिटिंग द वैल्यू, सिंपल एज दैट। क्लियर हुई बात? चलो, सो now we say that since each pixel are unit distance, xi को मैंने +1 कर दिया, but the value of yi can be, अब असल इशू ये है कि xi को तो हमने +1 कर दिया, simple as that। What about y? तो y को हमने कहा कि y can be either p, this p, or it can be q, this q, depending on the nearest point of interaction denoted by r, डिपेंडिंग ऑन कि आपका नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है, डिपेंडिंग ऑन नियरेस्ट पॉइंट कौन सा। ठीक है, तो हमें P नजर आ रहा है, मैथमेटिकली हम कैसे प्रूफ करेंगे P करीब तरीन है, मैथमेटिकली मुझे कैसे पता चले कि P करीब तरीन है, वो तो फिगर में आई कैन से दैट P इज वेरी नियर, बट हाउ शुड आई प्रूव दिस मैथमेटिकली, बिकॉज आई हैव टू राइट द कोड फॉर इट, इन ऑर्डर टू राइट एन एल्गोरिथम और अ कोड आई हैव टू नो द मैथमेटिकल रीजनिंग। तो वो जो डिसीजन पैरामीटर था अब हम उसको यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, हम एक पैरामीटर यूज करेंगे डिसीजन का जो ये तय करेगा कि आया इसका फासला कम हुआ या P और R का फासला, Q और R का फासला कम हुआ। वो डिसीजन हमें बता देगा कि आपका फासला कौन सा कम है, हेंस आपको कौन सा पिक्सल चूज करना है। तो उसने कहा कि अगर उसकी बेस पे P चूज करोगे तो P जब आप उठाओगे तो xi +1 और yi को एज इट इज रखना है। अगर आपका फासला P से कम हुआ तो अब इस पिक्सल तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x में तो +1 किया, y की वैल्यू जो थी यहाँ पे वही एज इट इज मैं रखूंगा तो ही मेरे पास P में पहुंचूंगा। और इफ आई हैव टू चूज दिस बॉटम Q, then it says you need to do xi +1, do the increment in xi as well as yi. Then in order to reach to this pixel, you have to do increment in both, in xi as well as in yi, तो ही आप Q तक पहुंचोगे। ठीक है, कि अगर मैंने Q वाला रूट उठाना है तो मुझे X में भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, Y में भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो ही मैं Q की तरफ जाऊंगा। Else, if I have to choose the path towards P, then I need to do the increment only in X-axis, whereas Y-axis की जो previous value थी, I would use that same value as it is। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एल्गोरिथम फॉर्म में लेट्स सॉल्व इट। ये इसके सॉल्यूशन का बेसिक रूल है। ठीक है, लेट मी जस्ट रीपुट ऑल दिस वी हैव डन इनटू एन एल्गोरिथमिक फॉर्म, दैट इफ आई हैव टू सॉल्व दिस लाइन इक्वेशन इन एन एल्गोरिथमिक, हाउ कैन वी डू दैट? सो इन ऑर्डर टू सॉल्व द सेम लाइन प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ एल्गोरिथम, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल get the values of x0, y0,
and the values of y1 x1 y1. ठीक है, सबसे पहले हमने x0 गेट किया, y0 गेट किया, the initial values, पहली values the starting point, then we say get the values of x1 y1. हमने कहा ठीक है, ये चीज भी समझ में आ गई. Then we say find the dx and dy. Then find the dx and dy. dx, इसको हम dx यहाँ पे लिखा हुआ है. We can write this as delta x. We can write this as delta y, meaning the same thing. This dx represents difference in x-axis. This dy represents difference in y-axis. This is a pair factor that we have been using continuously, regularly. So what we do is we say dx is equal to x1 minus x0. This would give us the difference in x. dy is equal to y1 minus y0. This would get the difference in y-axis. ये वो दो वेरिएबल्स हैं जो हम मुस्तकिल बार बार इस्तेमाल करते हुए आएंगे. जब वो वेरिएबल्स की हमने डिफरेंस निकाला as previous algorithms, simple as that. Then step 2 says now you need to find 3 new parameters. Step 2 says that now there are 3 new variables that you need to find about. सबसे पहले p. This p variable is in fact the difference factor. This p variable is the actual difference factor. This p would give us the difference whether I should go to this p or this q. ठीक है, वो जो डिफरेंस की हमने बात की थी वो ये p वेरिएबल हमें देगा. जो कॉइन टॉस करने की हमने बात की थी, टू टॉस द कॉइन टू चूज विच वेरिएबल आई वुड बी चूजिंग, विच पाथ आई वुड बी चूजिंग, तो ये p वो टॉस ऑफ कॉइन है. ठीक है, मैं अभी इस पर आता हूँ. उसके बाद दो और वेरिएबल मुझे निकालना है. एक q हो गया कि q की वैल्यू क्या है विद रिस्पेक्ट टू r, और p की वैल्यू क्या है विद रिस्पेक्ट टू r. कि मेरे पास p का वैल्यू क्या आ रही है, q की वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि जब इसकी वैल्यू पता चलेगी, इसकी वैल्यू पता चलेगी, तो ही मैं डिफरेंस सही से पता कर पाऊंगा यार किसके करीब तरीन है. बात समझ आई? मुझे पता करना है कौन सा करीब है. तो मेरी r मेरे करंट लोकेशन बता रहा है, p तो मुझे बताना है कि यार p कितना दूर है और q कितना दूर है, तो उसकी बेस पे मैं डिसीजन ले पाऊंगा. तो हमने सबसे पहले निकाला p इज द डिफरेंस टू डिफरेंस इन y. y एक्सिस में डिफरेंस कितना आ रहा है माइनस डिफरेंस इन x एक्सिस, h एक्सिस में डिफरेंस कितना आ रहा है. तो जो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज हमने यहाँ पे निकाली थी वो यहाँ पुट करेंगे. दिस वुड गिव अस द डिफरेंस फैक्टर. ठीक है, फिर आ जाते हैं डेल्टा e या q के ऊपर, डेल्टा ne या b के ऊपर. नाउ यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने रखा दिस इज नॉट द फंक्शन, दिस जस्ट मींस आइदर यू राइट डेल्टा e this one or delta ne which is this one, or if you want you can write q or p, because the book that I am currently referring to uses the notation of p and q. The book I referred to to solve this particular problem uses the notation of p and q, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे p and q भी रखा है. बट आगे प्रॉब्लम जो हमने किया है या जो प्रीवियस लेक्चर्स हमने डिस्कस किया था ब्रेसन एल्गोरिथम, तो उसमें जो नोटेशन यूज की हुई है वो NE NE यूज की हुई है. ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर मैंने दिया था जो चैप्टर 2 का था, उस बुक के अंदर जो कंप्यूटर ग्राफिक्स बाय फॉली है, तो बुक बाय फॉली यूजेस दिस नोटेशन NE NE. ठीक है, तो जो फॉली वाली बुक है उसको अगर आप पढ़ रहे हो तो इफ यू आर रिफरिंग दैट बुक इट यूजेस E and E and E as a notation. The book that I am referring to solve this problem in particular uses the notation of P and Q. So that is why I have written both here so that you don't get confused. एक जगह पे NE था, एक जगह P था, तो यार ये क्या हो रहा है. तो अगर फॉली वाली बुक आप उठाओगे उसकी स्लाइड्स भी मैंने अपलोड की हुई हैं. इफ यू फॉलो दो स्लाइड्स आपको NE और E वेरिएबल मिलेगा, मतलब सेम ही है, सिर्फ वेरिएबल नाम मुख्तलिफ किए हैं किसी ने. ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा क्लेरिफाई करने के लिए तो यहाँ पे मैंने डेल्टा E और डेल्टा NE रख दिया. फिर मैंने P इसीलिए भी यूज नहीं किया क्योंकि P यहाँ पे हमने डिफरेंस फैक्टर के लिए यूज किया हुआ है. तो अगर मैं P यूज करूँ तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है शायद हम इस P की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इस P की बात नहीं कर रहे. दिस इज अ कैपिटल P हियर एंड इट इज अ स्मॉल p, सो दिस इज अ डिफरेंस देयर. ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस देयर. चलें, अब E और Q जो फैक्टर वेरिएबल है इसको हमने कैलकुलेट किया 2 डेल्टा y से. dy is the difference in y.
क्यू में कितना डिफरेंस आ रहा है, क्यू कितना डिफरेंस के साथ वेरिएबल कैलकुलेशन हो रही है, देन डेल्टा एन ई ऑफ पी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय डी वाई माइनस डी एक्स। तो डी वाई और डी एक्स का जो डिफरेंस निकाला हमने, माइनस करने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास इस वेरिएबल या इस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा स्टेप। थर्ड स्टेप सेज प्लॉट द पिक्सल ऑफ आई, प्लॉट दिस पिक्सल आई, ओके, x naught y naught. Before you proceed further in your calculations, according to the algorithm, you need to plot the first pixel, because मैंने पहले भी कहा this is an incremental model. Incremental model में जब तक आप पहला पिक्सल प्लॉट नहीं करोगे, अगले पिक्सल की वैल्यू आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो based on that, we have to ensure that I have plotted the first value of pixel. तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैंने पहले पिक्सल की वैल्यू प्लॉट कर दी। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। Now step 4, the solution. The step 4 is the loop that will loop around from x naught till x1. कि x naught से start करो, less than equal to s1, means जैसे हमने previously भी कहा था that we will be giving a starting point and ending point. x1 यहाँ पे x naught ये हो गया, x1 ये हो गया, यहाँ से start करो जब तक आप x1 तक नहीं पहुँचते। We have to loop around. ठीक है, the same logic has been applied on all the line algorithms. तो वही लूप हमने यहाँ पे रखा, x naught स्टार्टिंग पॉइंट है, x naught से स्टार्ट करो, कब तक, जब तक आपकी वैल्यू x1 के बराबर नहीं रहती। जब x1 के बराबर हुई, एंडिंग पॉइंट तक पहुंची, जस्ट स्टॉप देयर, डोंट नीड टू गो एनी फर्दर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, सिंपल व्हाइल कंडीशन। देन अब आते हैं डिफरेंस फैक्टर के अंदर, दिस डिफरेंस वेरिएबल p, नाउ इट कम्स एंड कैलकुलेट्स डिफरेंस। कि अगर p की वैल्यू 0 से कम है, if the value of p is less than equal to 0, then what do? You use p is equal to p delta e and you increment x naught plus 1. सिर्फ x एक्सिस में इंक्रीमेंट करो, y में इंक्रीमेंट ना करो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर p की वैल्यू 0 से कम आती है तो आपको क्या करना है, आपको x के अंदर इंक्रीमेंट करना है। In other words, if I go back, तो आपको क्या करना है, p के अंदर, because remember p था जिसमें मुझे सिर्फ x में इंक्रीमेंट करना था, y को as it is रखना है। तो if my variable line is nearer to p in this case, then what I will do, I will just increment in x axis and leave the y as it is. यही था p, तो यही यहाँ पे इसने लिखा होगा that if your value is less than 0, difference अगर आपका 0 से कम आ रहा है, that means that your line is nearer to this p factor. Hence what you do, you just increment in x axis and leave y untouched. y में no तब्दीली, no change. और फिर दोबारा मैंने p को कैलकुलेट किया। अब इस फॉर्मूला के तहत मैं इस पॉइंट पे दोबारा आता हूँ। अगर मेरी वैल्यू p से 0 से बड़ी आ गई, if the value of p is greater than equal to 0, तो what I do is now else पर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी p की जो इनिशियल वैल्यू है वो 1 आ गई, p की इनिशियल वैल्यू 1 आ गई। और 1 आने का क्या मतलब, ग्रेटर हो गई। 1 आने का मतलब ये कंडीशन ग्रेटर हो गई, ये फॉल्स हो गया। इफ दिस इफ इज फॉल्स, else will be executed. else execute हुई तो that means कि x नॉट में +1 करो, y नॉट में +1 करो, मीन्स मैंने दोनों में प्लस किया, x में भी y में भी। तो ये कौन सी बात हुई, ये q वाली फैक्टर हो गई। दिस इज सेम एज q, दैट मीन्स कि माय लाइन नाउ वाज नियरर टू q। x में भी प्लस किया, y में भी प्लस किया, ये वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी एल्गोरिथम फॉर्म में। फिर मैंने दोबारा p को कैलकुलेट किया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अब यहाँ पे ये चीज +1 समझ में आया, कंडीशन क्या है डिफरेंस की समझ में आया, ठीक है। अब आ जाता है कि ये दोबारा p मैंने यहाँ पे दो अलग अलग फॉर्मूला से क्यों कैलकुलेट किया। तो देखो हमने कहा कि यार डिप्रेशन है, हमने स्टार्ट किया i से, इनिशियल पॉइंट प्लस किया, नेक्स्ट वैल्यू पे आ गया। मैंने नेक्स्ट वैल्यू पे आने के लिए फिर मैंने डिटरमाइन किया कि मैं p उठाऊं कि q उठाऊं, विच इज द नियरेस्ट। तो मैंने p फाइंड किया पहले, डिफरेंस फैक्टर, इन दिस केस हियर I found out the p value and based on this p value I put it inside the condition। मुझे पता चल गया कि whether I should go this way or this way, ठीक है।
जब मैं उस जगह पहुंचा तो अब उसके बाद फिर अगले पिक्सल पे जाना है। अब दोबारा जब अगले पिक्सल पे गए तो दोबारा से मुझे वही मसला आ गया कि मैं P वाली वैल्यू उठाऊं कि Q वाली उठाऊं, क्योंकि फिर मेरी लाइन दो पिक्सल्स के दरमियान में आ गई। तो इसका मतलब मुझे दोबारा P की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब क्योंकि लाइन की कंडीशन चेंज हो गई, अब मैं एक नए पिक्सल पर आ गया हूं, तो अब उसके वजह से उसके हिसाब से मुझे दोबारा P को रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। आई विल नॉट बी यूजिंग द सेम P, आई विल नॉट यूजिंग द सेम P वैल्यू, बिकॉज पहले वैल्यू यहाँ पे थी, ये जो P निकाला ये विद रिस्पेक्ट टू इसके निकाला। वंस आई हैव डिसाइडेड यार दिस वन इज नियरेस्ट, हेंस माय लाइन वुड गो हियर। यहाँ से फिर जब दोबारा लाइन बनी तो यहाँ पर आ गई, अब तो क्योंकि अगला पॉइंट ये था। ठीक है, अब मुझे ये पिक्सल उठाऊं कि ये पिक्सल उठाऊं, फिर वही फैसला की घड़ी आ गई, whether I should choose this P or this Q. Then I will need to find this small difference again. Based on this, what is the again difference? तो मुझे हर दफे at every step I would have to recalculate this difference factor. ठीक है, अब मैं कैसे कैलकुलेट करूं? तो I will not be using the same formula. Instead, I would be saying कि अगर वैल्यू 0 से कम आती है तो P को आप उठाओ, P is equal to delta E करके। ठीक है, P is equal to delta E, which is this thing. Okay, once you choose this variable, now next time you just use this E variable to recalculate it. But if your factor is P is equal to P plus delta NE, means अगर आपकी वैल्यू जो है P की वो 1 या 1 से बड़ी आ जाए, तो अब X में प्लस करो, Y में प्लस करो, और P की अगली वैल्यू निकालने के लिए आप डेल्टा NE होता है, डिफरेंस NE means अगर मेरा पिक्सल ये है तो P की अगली वैल्यू मैंने इसको इस्तेमाल करनी है, अगर मेरा पिक्सल ये वाला हो गया तो P की अगली वैल्यू मैंने इससे इस्तेमाल करनी है। सिंपल। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आया ये चीज? अच्छा, क्यों कर रहे हैं ये सिर्फ समझो, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी दोबारा मैं समझाता हूँ। हमने P को निकालना है, P डिटरमाइन करेगा कि डिफरेंस क्या आएगा, लाइन इस तरफ जाए कि उस तरफ जाए। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि जब पहली दफा मैंने P को निकाला, I chose the line, simple as that. Then when I proceed to the next variable, मैंने P को फाइंड कर दिया, मुझे पता चला कि मुझे यहाँ पे जाना है। अब उसके बाद दोबारा से अगले पिक्सल को चूज करने के लिए मुझे फैसला करना पड़ेगा कि मैं कौन सा उठाऊं, क्योंकि नाउ अगेन इट इज पॉसिबल दैट माय लाइन इज इंटरसेक्टिंग टू पिक्सल्स। तो मैंने फिर एक वाला पिक्सल उठाया, फिर इस तरफ आ गया। देन अगेन व्हेन आई प्रोसीड, अब फिर दोबारा वही मसला आ गया कि अब दो पिक्सल इस तरफ आ गया, मेरी लाइन बीच में जा रही है, अब कौन सा उठाऊं? तो मुझे ये हर दफे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यार मैं लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं, फिर लेफ्ट कदम उठाया, अब मैं लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं, फिर राइट कदम उठाया, फिर लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं। एट एवरी फ्रेम, एवरी पिक्सल आई वुड हैव टू कैलकुलेट दिस थिंग। एट एवरी पिक्सल आई वुड हैव टू कैलकुलेट यार अब मैं कौन सा पिक्सल चूज करूं, बिकॉज द वे माय लाइन हैज बीन ड्रॉन, इट इज नॉट क्रॉसिंग द पिक्सल्स, इट इज इंटरसेक्टिंग द पिक्सल्स ऑल अलोंग। ठीक है, इसीलिए मुझे P को हर दफे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, फिर हर दफे P के लिए मैंने सेम फॉर्मूला यूज नहीं करना। ठीक है, जो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है वो ये है कि हर दफे मुझे P के लिए सेम फॉर्मूला यूज नहीं करना। डिपेंडिंग ऑन माय प्रीवियस वैल्यू, मेरी पिछली वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी अगली वैल्यू क्या होगी। यही इंक्रीमेंटल मॉडल का सबसे मेन फैक्टर है, दैट बेस्ड ऑन माय प्रीवियस वैल्यू I take the decision on the next value। यहाँ पे वो चीज़ हो रही है, that based on my previous value कि P क्या आया था, मैंने अगली वैल्यू पर डिपेंड करना। ठीक है, चले, let me very quickly solve a problem for this। नेक्स्ट क्लास किसकी आपकी? आइए अभी तक, चलें, give me 5 minutes में क्विकली एक छोटा सा प्रॉब्लम करा दूँ, क्योंकि मैं मिड टर्म में शायद ये प्रॉब्लम दूँ आपको। ठीक है, इसकी सोल्यूशन यहाँ पे स्लाइड्स में ऑलरेडी मौजूद है, मैंने अपलोड कर दी। So, for example, I said solve a Brusselhams line drawing algorithm for the values 2 and 3 and 8 and 7. I give you two values, starting and ending. See, this is something that you will always be given. Whenever we draw a line, we have to know the starting point, we have to know the ending point. The task is to find out the middle in between points. ठीक है, यही हमारा मेन टास्क होता है कि यार दो वैल्यूज मुझे गिवन है, एक स्टार्टिंग पॉइंट कहलाती है, दूसरी एंडिंग पॉइंट कहलाती है। जब दो वैल्यूज मुझे गिवन है तो
अब मैं उसकी एंडिंग वैल्यूज को किस तरीके से डिटरमाइन करूं, ठीक है। सो व्हाट आई डू इज आई टेक द x नॉट y नॉट, x1 y1, x नॉट 2 हो गया, x1 8 हो गया, y नॉट 3 हो गया, y1 7 हो गया from this values. Quite simple as that. Then we find the values of dx and dy. How do we do that? Dx is equal to x1 minus x naught. x1 की वैल्यू आई 8 minus 2 6 आ गया. dy difference in y which is y1 minus y naught is equal to 7 minus 3 is equal to 4. Very simple arithmetic. ये चीज समझ में आई? ठीक. Then step 2. Step 2 says first of all find the value of p. p को हमें फाइंड करना है 2 dy minus dx. ठीक है. लिखने की कोशिश नहीं करो, मैंने सारे नोट्स अपलोड कर दिए ऑलरेडी नेट पे. Just go on to my blog, you will find the notes already there. Just try to understand it कि यार what is happening. ये सब उसमें लिखे हुए स्लाइड्स मैंने अपलोड कर दिए हैं. ठीक है. So हमें p निकालना है. p को निकालने का तरीका हमें पता है कि 2 dy minus dx. This is the formula. Hence what we do is we use 2. dy की वैल्यू क्या आई 4 माइनस dx की वैल्यू क्या होगी 6. 6 is equal to 2. सिंपल अर्थमेटिक, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि डिफरेंस निकालने के लिए 2 dy माइनस dx इज अ फॉर्मूला. आई यूज दिस फॉर्मूला. अब dy क्या था हमने यहाँ से भी फाइंड किया, पुट इट हियर. dx क्या था अभी यहाँ से फाइंड किया, पुट इट हियर. तो p का फैक्टर आ गया 2. फिर डेल्टा e या q कह लो. डेल्टा e इज दिस वेरिएबल हियर या q कह लो, व्हाटएवर यू वांट टू राइट. सो ऐसा है डेल्टा e इज इक्वल टू 2 dy. दिस इज द फॉर्मूला. e को निकालने का फॉर्मूला ये रहा 2 dy. इस 2 dy को इज इक्वल टू क्या 2 मल्टीप्लाई बाय dy की वैल्यू हमें पहले से पता है कि 4 है. 4 पुट किया हमारे पास 8 आ गया. फिर डेल्टा ne और p. डेल्टा ne इज दिस पॉइंट और या p ये पॉइंट जो कह लो आप. इस पॉइंट को कैलकुलेट करने का हमने कहा कि फॉर्मूला का 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में dy माइनस dx. कि dy और dx का जो डिफरेंस था उसको निकालो, पहले माइनस करो दोनों के डिफरेंस में से जो वैल्यू आई उसको 2 से मल्टीप्लाई करो. तो जो वैल्यू आई मेरे पास 4 माइनस 6 विल बी माइनस 2. माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2. यहाँ तक चीज समझ में आई? सिंपल अर्थमेटिक, नो कॉम्प्लिकेशन. ठीक है. आई एम अज्यूमिंग कि इतना आपको बेसिकली होना चाहिए. दिस शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम. ठीक है. फिर स्टेप 3 प्लॉट द पिक्सेल एट x नॉट y नॉट. अब हमें तीसरे स्टेप में क्या करना था, पिक्सेल्स को प्लॉट कर दो. बात क्लियर? 3 स्टेप्स वेरी इजी. ठीक है. असल जंग अब शुरू होती है. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, p की वैल्यू अलग से रख दी, डेल्टा e की वैल्यू रख दी, डेल्टा ne की वैल्यू, ताकि मैं रेफर कर सकूं बार बार. ठीक है. तो ये तीनों वैल्यूज हम अभी फाइंड कर आए. अब एक्चुअल मुझे इस लूप को इंप्लीमेंट करना है. बट दिस इज द लूप इन टर्म्स ऑफ द सोर्स कोड. ये तो कोडिंग में, इसको मैं पेपर पे कैसे सॉल्व करूंगा, या इस प्रॉब्लम को मैं पेपर पे कैसे सॉल्व करूं, उसको सॉल्व करने के लिए मुझे ये टेबल चाहिए. ठीक है. अब डोंट लुक डाउन, स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. सबसे पहली रो में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट रो से 2 और 3. मैडम आई आजा, बस 2 मिनट रुको. पहली रो क्या कह रही है 2 and 3. ठीक है. मींस जो प्रीवियस स्टेप हमने कहा था प्लॉट द पिक्सेल, तो जो पहला पिक्सेल था 2 and 3 वो एज इट इज मैंने प्लॉट कर दिया. उसके बाद p मैंने निकाल के आया हूं. p क्या है 2. मैंने कहा 2 की वैल्यू क्या आई मेरे पास, ग्रेटर देन लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0. अगर ग्रेटर देन 0 थी तो मुझे x में भी इंक्रीमेंट करना है, y में भी इंक्रीमेंट करना है. तो मैंने x की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, y की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया. ठीक है. x becomes 3, y becomes 4. These are 1 2 3. और फिर चौथे स्टेप में मैंने p को दोबारा से कैलकुलेट करना है. तो ये जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 मैंने यहाँ पे लिखे हैं. ये सिर्फ इस टेबल के वाइज स्टेप है, क्योंकि टेबल थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है कि हम पहले क्या कर रहे हैं. इसीलिए मैंने इन कॉलम्स के ऊपर थोड़ा सा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लिख दिया, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. सो नाउ व्हाट वी डू इज स्टेप 1 पहले p निकालो, स्टेप 2 में इंक्रीमेंट करो, 3 में इंक्रीमेंट करो, और 4 में एज इट इज इस p की वैल्यू कैलकुलेट करो. अब दोबारा जब मैंने p की कैलकुलेट की तो p की प्रीवियस वैल्यू क्या आई 2. डेल्टा ne हम निकाल कर आए -4. -4 इज इक्वल टू -2. -2 आ गया, मतलब p की वैल्यू क्या आई मेरे पास
-2 माइनस आ गया मतलब ये वाला, ये आ गया मतलब x में तो मैंने प्लस किया, सो x बिकम्स 3, तो y को एज इट इज हमने रखना है, नो टेम्परिंग, हेंस y जो 4 था वो एज इट इज यहाँ पर आ गया। और फिर चौथे स्टेप में मैंने p को अब इस फॉर्मूला के तहत कैलकुलेट करना है, क्योंकि नेगेटिव में आ गया। अब p -2 आया था, -2 प्लस डेल्टा e क्या है 8 यहाँ पे रखा, आंसर क्या आया 6 को फिर यहाँ पे रखा, क्योंकि पॉजिटिव 6 है तो पॉजिटिव का मतलब x में भी इंक्रीमेंट करो, y में भी इंक्रीमेंट करो, दोनों में इंक्रीमेंट कर दी। अब बिकॉज पॉजिटिव आया तो नेक्स्ट p की वैल्यू मैंने इससे कर दी, तो यहाँ पे 6 एज इट इज पुट किया प्लस डेल्टा ne -4, आंसर क्या आया 2, अगेन पॉजिटिव मींस मैंने 2 रखा, पॉजिटिव आया तो x में भी +1 किया, y में भी +1 किया, तो अब दोबारा 2 मैंने रखा -4, अब -2 आ गया -2, फॉलो द सेम प्रोसेस 2-3 दफा, ठीक। So try to solve this problem। इसके बाद if you proceed, मैंने नेट पे रखी हुई है ऑलरेडी नेक्स्ट स्लाइड्स, तो मैंने एक और एग्जांपल दिया हुआ है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम अगेन योरसेल्फ एंड देन ट्राई टू कंपेयर कि whether आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा, बिकॉज दिस क्वेश्चन विल बी इन द मिड टर्म, ठीक है। एंड देन देयर इज अ ब्लैंक शीट जिसको मैंने सॉल्व नहीं किया होता, उसूलन फिर मैं इसको नेक्स्ट क्लास में करवा देता, पर अभी टाइम इतना नहीं है, सो आई एम अज्यूमिंग कि यू ट्राई टू सॉल्व दिस। फिर इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट डू कम बैक टू मी एनी टाइम एंड देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, बट बिकॉज वी हैव मिड टर्म नेक्स्ट वीक, मेक श्योर यू ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मिड टर्म में यहाँ तक आएगा, ब्रेसन-हैम्स के बारे में आएगा, सो देयर विल बी MCQs, fill in the blanks or true and false, and there will be one problem as well, so there will be a problem that you would have to solve। ब्रेसन-हैम्स, DDA, पॉलिनोमियल हमने 3-4 किए हुए हैं, ठीक है, तो लाइन के इन 3-4 में से किसी कोई भी एक प्रॉब्लम मैं जरूर दूंगा सॉल्व करने के लिए, सो डू मेक श्योर दैट फॉर द मिड टर्म यू डू प्रैक्टिस इट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह फिर